Good morning student. Welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. Today I am going to describe the plant kingdom. In plant kingdom we will discuss about the alga. Okay. Alga are actually considered into a plant kingdom. Alga are those type of plant which are chlorophyllous. It means that in alga chlorophyll is found, and with the help of this chlorophyll they can make their food with the process called photosynthesis, and they are non-vascular. Remember that they are non-vascular. It means that no vascular bundle, xylem and phloem is found, and they are thallophyta. What do you mean by thallophyta? Thallophyta means the structure that cannot be differentiated into true root, stems and leaves. It means that ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता उसको हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। थैलो मींस बॉडी उनकी थैलस लाइक होगी, और थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या होता है? रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, ओके। कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इट मींस दैट alga are unicellular, some also multicellular. Reproductive organs are mostly unicellular. Alga are unicellular, made up of single cell. It is also multicellular, made up of many cells. Their reproductive organs are mostly unicellular. इनके जो reproductive organs होते हैं वो unicellular होते हैं, but जो brown alga होते हैं, भूरे शैवाल जो brown alga होते हैं वो जो है उनके जो reproductive organs होते हैं वो कैसे होते हैं? multicellular होते हैं। इसके बाद इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनमें स्ट्राइल सेल ऑफ जैकेट नहीं पाई जाती है। था स्ट्राइल का मतलब जो होता है जो अपनी संतान में उत्पन्न कर सके उसको हम स्ट्राइल बोलते हैं। स्ट्राइल सेल ऑफ जैकेट इज एब्सेंट इन alga's reproductive organ. And here one also important point that there is no embryo formation take place. It means that after reproduction, sexual reproduction or asexual reproduction both are occur in alga. But what happened during the sexual reproduction? One cell act as a male and another cell act as a female. They fertilize to each other. But what happened? As in the case of human beings, embryo is formed. But in the case of plant here in alga, no embryo formation take place. तो जब एम्ब्रियो नहीं बनता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देते हैं। ओके, द स्टडी ऑफ एल्गा इज नोन एज एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टडी जो होती है एल्गा की उसको एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी हम कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एल्गा आर देयर आर एग्जांपल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कारा is a type of alga which is actually found in mud. Okay, it is a type of alga that is known as kara. In kara what happen? It is found in mud. ये कीचड़ में पाया जाने वाला alga होता है। Now next example is Gygnema. Gygnema is a type of alga which is found in fresh water. Fresh water में पाया जाता है। fresh water किसे कहते हैं? तालाब और जो झीलों का जल होता है उसको हम fresh water बोलते हैं। अर्थात ये जो जिग्निमा है ये कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा एंड वॉल्वॉक्स दे आर सच टाइप ऑफ एल्गा व्हिच एक्चुअली स्विम अपॉन द वाटर सरफेस। दे एक्चुअली स्विम अपॉन द वाटर सरफेस। ये क्या करते हैं? पानी की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। कौन-कौन से? स्पाइरोगाइरा एंड वॉल्वॉक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पाइरोगाइरा एंड वॉल्वॉक्स जो है पानी की सतह के ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं। जिग्निमा फ्रेश वाटर एल्गा होता है। कारा मड में पाया जाता है। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। उसके बाद उडोगोनियम। उडोगोनियम एक ऐसा एल्गा होता है जो एपीफाइट्स होता है। उडोगोनियम इज अ टाइप ऑफ एल्गा व्हिच आर एक्चुअली एपीफिटिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एपीफिटिक? एपी मींस एट द टॉप, फिटिक means plant. It means that it is living upon the plant. Okay, such type of a plant is known as epiphytes. Or for example endophyte. Endophytes are what? Those type of animal or plant which can live inside the plant is known as endophyte. Okay, epiphyte is what? Epiphyte is such type of alga which are actually found over the another plant. Okay, so Udogonium is the example of epiphytic alga. Udogonium is the example of epiphytic alga. Now these examples are very much
that will reside on the plant. Okay, now comes to the next example, protoderma. This is one of the most important examples of alga. Protoderma is live upon the tortoise. It means that the कछुए की पीठ पे पाया जाने वाला alga कौन सा होता है? प्रोटोडर्मा होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रोटोडर्मा वो alga होता है जो कछुए की पीठ पे पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल है क्लैडोफोरा। ये स्नेल की पीठ पर पाया जाता है। स्नेल को हिंदी में हम घोंघा कहते हैं। घोंघे के ऊपर ये पाया जाता है। क्लैडोफोरा is live upon the snail and protoderma is live upon the tortoise. So this is the actually alga's characteristics and examples of alga. Now comes to the lichens. Lichen is one of the important division of the plant. Actually lichen is important because it is a symbiotic association between alga and fungi. This one is the most important point. What is lichen? Lichens is such type of a organism that is actually the combination of two different organisms. This one is important. Okay, alga क्या, lichens क्या होते हैं? Lichens ऐसे organisms होते हैं जो वास्तव में दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनते हैं, अर्थात उनके एसोसिएशन से मिलके बनते हैं। और वो दो एसोसिएशन किसका किसका होता है? वो होता है एल्गा एंड फंजाई। एल्गा और फंजाई आपस में मिलकर के एक एसोसिएशन बना लेते हैं जिसे हम लाइकेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लाइकेन कहते हैं। और हम इसको वी कैन आल्सो बी से दैट कि दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा एंड फंजाई इज नोन एज लाइकेन। व्हाट इज दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में जब दो जीव या दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे के भरण पोषण में सहायता करके, एक दूसरे की सहायता प्रदान करके दोनों साथ में जीवन यापन करते हैं, तब हम इस एसोसिएशन को, इस संबंध को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। व्हाट इज सिम्बायोसिस? एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन व्हिच both the organisms are benefited. This one is important one. Okay, both the organisms are benefited. Actually में होता क्या है यहाँ पर कि एल्गा जो है, जैसा कि आपको पता है कि एल्गा के पास क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। और फंगाई हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, फंगाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो भाई इन दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली और दोस्ती करके फंजाई ने एल्गा से कहा, किसने? फंजाई ने एल्गा से कहा कि देखो ऐसी बात है कि हम अकेले तो जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हारे सहारे हम जिंदा रह सकते हैं। तो एल्गा बोला कैसे? एल्गा ने बोला, फंजाई ने कहा कि ऐसी बात है, देखो मैं तुम्हारी इस बात में सहायता कर सकता हूँ कि तुमको मैं मिनरल्स और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करके तुमको दे सकता हूँ। मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गा को मैं दे सकता हूँ। तो एल्गा बोला ठीक है, तुम मुझे पानी दे सकते हो और मिनरल्स दे सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्योंकि तुम अपना भोजन तो बना नहीं सकते, इसलिए सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने का काम मैं करूंगा, अर्थात एल्गा करेगा। तो एल्गा क्या करता है? एल्गा के पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, वो भोजन बना सकता है और वो प्लांट कैरेक्टर है उसका। तो उसने कहा कि मैं जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो भोजन बनाऊंगा वो मैं तुमको दे दूंगा। तो दोनों लोगों का जीवन आपस में चलता रहेगा। ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप होता है और बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, और दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से फायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरीके के एसोसिएशन को, ऐसे एसोसिएशन को की प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। और जब एल्गा और लाइकेन आपस में मिलते हैं तो इस एसोसिएशन को जब एल्गा और फंजाई आपस में मिलते हैं तो इस एसोसिएशन को हम लाइकेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लाइकेन। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि लाइकेन इज actually a dual nature. It means that it also having the characteristics of alga and also having the characteristics of fungus. So we can say there are dual nature. इनकी दोहरी प्रवृत्ति होती है, ये dual nature के होते हैं। अच्छा, इसके बाद next point में come to the next point. They show halotism. This is one of the important phenomena that is known as halotism. Halotism is actually a type of symbiotic relationship. As we halotism is a such type of a relationship. We can also say it is a symbiotic relationship. Halotism is what? Symbiotic relationship.
This halotism is actually also called as master and slave relationship. This one is important point. Here halotism is actually also called master and slave relationship. आगे बात समझ लो। तो कहने का मतलब है जो हेलोटिज्म होता है इसको मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं। मास्टर तो मास्टर ही होता है अर्थात हर चीज में ये परिपक्व होता है। स्लेव का मतलब होता है नौकर, ठीक है। तो कहने का मतलब है गुरु और नौकर का रिलेशनशिप क्या कहलाता है, हेलोटिज्म कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मास्टर का काम कौन करेगा, तो मास्टर का काम करता है फंगस। कौन करता है, फंगस। भाई देखिए यहाँ पर कैसे मास्टर, सर फंगस कैसे मास्टर हो गया, मास्टर तो जो है एल्गा को होना चाहिए। भाई एल्गा भोजन बना के दे रहा है, हमारे घर में भोजन बना के, जैसे मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई नहीं तो हम क्या रखते हैं, नौकर रख लेते हैं हमारे घर में, तो वो हमको क्या देता है, हमको भोजन बना करके देता है। तो जो भोजन बना करके देता है तो वो नौकर की तरह उसको मान सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो भोजन बना रहा है स्लेव जो है वो एल्गा हो जाएगा, मास्टर कौन हो जाएगा, फंगस हो जाएगा। तो दिस एसोसिएशन इज एक्चुअली known as master and slave relationship is known as halotism. Now comes to the characteristics of the lichen. Lichen body is also thymoid. It means that it cannot be differentiated into root, stems and leaves. It is a thallus-like structure which is actually not in this type of a structure. There is no root, no leaves and no stem is found. Okay. So what is thymoid? Root, stems and leaves are not found in such type of a structure. So this structure of lichen is also a thymoid-like type. Now second characteristic is that alga make the food by the help of photosynthesis. I already tell. Fungus absorb water and minerals from the soil. Fungus absorb water and minerals from the soil. Now comes to the economic importance of the lichen. Lichen is one of the most important point here, that lichens are the indicator of air pollution. This one is one of the most important point. Lichens are actually the indicator of air pollution. ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, अर्थात हमको बता देते हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। कैसे बताते हैं, देखिए याद रखिएगा, जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज्यादा होगी वहाँ पे लाइकेन ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें देखना है कि एयर पोल्यूशन हमारे, जैसे मान लीजिए चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ हमें देखना है कि एयर पोल्यूशन यहाँ है कि नहीं, तो सीधी सी बात हम वहाँ पर ला करके एक लाइकेन लगा देंगे और वो लाइकेन अगर जीवित रह जाता है तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं है, अगर वो लाइकेन मर जाता है तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दे आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, नाउ कम्स टू द एग्जांपल्स ऑफ लाइकेन। हियर Parmelia. Parmelia is actually a lichen. It is a association of fungus and alga. Parmelia is a example of lichen which is used in curry powder. This is important point. जब कड़ी बनाई जाती है तो उसमें कड़ी पाउडर पड़ता है, वो कड़ी पाउडर जो होता है क्या होता है, वो पार्मेलिया होता है। और पार्मेलिया किसका एग्जांपल है, लाइकेन का एग्जांपल होता है। Now cladonia. Next example is cladonia. Cladonia is also known as reindeer moss. This one is important point. Okay, remember that it can also ask in the examination. Cladonia is actually also known as reindeer moss and it is used as a fodder. ये चारे के रूप में खाया जाता है जानवरों के। Cladonia is also known as reindeer moss और चारे के रूप में खाया जाता है जानवरों के द्वारा। Now one is also example is also important, that is known as Peltigra. Okay, Peltigra is actually also known as dog lichen. This is important point. Peltigra is also known as dog lichen. Which one of the following question is asked like that? Which of the following lichen is known as dog lichen? So the example is Peltigra. Peltigra is known as dog lichen because the Peltigra is used in the case of hydrophobia. When dog are bite to someone, it is covered by a disease known as hydrophobia. So in the treatment of hydrophobia we can use an lichen that is known as Peltigra. So that's why it is known as dog lichen. Okay student, this is all over today for the lecture. Thank you.